Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as Assistant Professor in Chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this Tetrahedron Chemistry Classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the Tetrahedron Chemistry Classes. So guys, if you remember in my last lecture of lubricants and the lubrication, I have completed up to viscosity and the viscosity index, and today I am going to take another two very important parameter which are actually very important to understand if you are say working with any kind of the machine where you are using the lubricants. Okay, so I'll discuss these 2 points today, and the points, actually the name of the point is the flash point and the fire point. So see guys, as you can see, flash point and fire point. So for this, see, first of all, to explain this thing, I'm not going to read the definition, right? First I'll explain how the things will happens. So guys, the apparatus used for the determination of the flash point and the fire point is actually this one. I haven't labeled this particular diagram, but the name of this is Abel's flash point apparatus. Okay, so this you can use. And then you may have the second one, which is Penske Martin flash point apparatus. So these two I have shown only. There are other brands and the other kinds of the flash point determination apparatus for the flash point determinations are available in the market. Okay, so actually see now what happens actually. So you can understand the concept here. Say this is the oil cup. Okay, this one, this is your oil cup, and in this oil cup you have filled a certain lubricating oil. Okay, and inside this oil you have put it that thermometer. Okay, and you can see over there is an arrangement just like that you can see here, and this shutter actually is the controllable shutter, and this actually shutter slides when you rotate that shutter. Okay, so there is a system in your apparatus so that you can rotate this one, and by rotating that आप इसको आराम से खोल बंद कर सकते हैं. ठीक है. Now since and you are heating your oil sample from here, so it's a direct heating of your oil, lubricating oil, or and this here you can see this is the system which is actually produce flame near to this particular surface, and this flame would actually run by the LPG गैस सिलेंडर और LPG लाइन. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, जैसे ही आप इसको हीट कर देंगे तो हीट करते करते यहाँ से ऑयल की कुछ वेपर निकलेंगी ऊपर, और आप लगातार बार बार इसको रोटेट करके इसमें आप लगातार इस फ्लेम को इंट्रोड्यूस कराएंगे. तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जैसे ही आप फ्लेम लगाएंगे तो यहाँ पे एक स्पार्क जैसा निकलेगा, एक मोमेंट्री फ्लैश आएगा. तो जिस टाइम पे वो मोमेंट्री फ्लैश आया है वो टेम्परेचर आपने इस थर्मामीटर से नोट करना है, वही टेम्परेचर इस ऑयल का फ्लैश पॉइंट होगा. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. ओके, एंड नाउ यू कैन रीड द डेफिनेशन. फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which lubricating oil gives off enough vapors that will ignite for a moment if a tiny flame of certain dimension, right, is brought near to the surface of the oil. तो यही इसका डेफिनेशन है कि ऑयल का वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल इतनी वेपर्स प्रोड्यूस कर दे कि वो वेपर आपको एक मोमेंट्री फ्लैश जैसा दे दे जब उसके पास ऑयल की सरफेस के पास कोई आपका छोटी सी फ्लेम एक सर्टेन डायमेंशन की लाई जाए, तो वो टेम्परेचर उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है. नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट. ओके, एंड यू कैन सी हेयर in here I have written this crude soybean oil, and this crude soybean oil is having the flash point of 310 degree centigrade. Okay, and see this is all about your flash point. Now the second point is that is your fire point. Now if you see your fire point, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बीच में, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल एक है. सिर्फ डेफिनेशन कहाँ पे चेंज आएगी, जहाँ पे आपने लिखा है दैट विल इग्नाइट फॉर अ मोमेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे दैट विल इग्नाइट फॉर 5 सेकेंड्स. बस अब अगर इसको 5 सेकेंड्स तक कर देंगे तो फिर ये आपका फायर पॉइंट कहलाएगा. ये आपने ध्यान में रखना, बस यही डिफरेंस है. इंस्ट्रूमेंट दोनों ही केसेस में एक सेम ही यूज होता है,
and you can see here the fire point is what, it is actually 320 degree centigrade. So you can see there is a marginal difference in degree centigrade between the flash point and the fire point. फायर पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है और फ्लैश पॉइंट हमेशा कम होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर फायर पॉइंट. So guys, you can see the definition here. It is the exact same definition. The only difference is the time duration by which your flame actually will burn. So fire point is the lowest temperature at which the lubricating oil gives off enough vapors that will ignite at least for the 5 seconds if a tiny flame of certain dimension is brought near to the surface of the oil. तो यही तरीका है, बस इससे पहले जो मैं बोल रहा था यहाँ पे मोमेंट्री फ्लैश आएगा, ये मोमेंट्री फ्लैश ना आके अब लगभग 5 सेकंड तक जलेगा, तो ये फायर पॉइंट कहलाएगा. ठीक है. नाउ देयर कम्स द इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ये जो फ्लैश पॉइंट है एक्चुअली ये इंडिकेटर है फायर हैजार्ड का. फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए कोई एक सरफेस ये था और एक ये दूसरा सरफेस था और इसके बीच में आपने कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला हुआ है. ठीक है. लोड ऊपर से पड़ेगा और मान लीजिए ये इनके मूव करने का तरीका है, ये इस तरीके से मूव करती हैं. तो क्या होगा, जैसे ये सरफेस स्लाइड और रब करेंगी, आपस में स्लाइड करेंगी, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल हीट जिसकी मैं बात अक्सर करता हूँ, सो आई एम राइटिंग FH फॉर द फ्रिक्शनल हीट, वो फ्रिक्शनल हीट जनरेट होगी. तो उस फ्रिक्शनल हीट की वजह से ये ऑयल वेपराइज होगा और ये वेपर फॉर्म में आएगा. और अगर कहीं से कोई इसमें कोई स्पार्क अगर आएगा, तो स्पार्क आने से अगर ये फ्लैश देता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आग लगने का खतरा है, क्योंकि कहीं से स्पार्क आ रहा है और फ्लैश पॉइंट मिल रहा है. तो आप तुरंत अपनी मशीन को शट डाउन कर देंगे. ठीक है. और शट डाउन करने से जो आग लगने का खतरा है वो आप दूर कर देंगे. ओके. एंड देन देयर इज अ सिग्निफिकेंस बिटवीन योर फ्लैश पॉइंट एंड द फायर पॉइंट. इसको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. देखिए इसमें हमेशा 10 डिग्री का डिफरेंस तो रहना ही चाहिए, ज़्यादा हो तो और अच्छा है. यहाँ पर भी हमने सोयाबीन ऑयल में 10 डिग्री का डिफरेंस दिखाया हुआ है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में. ओके. नाउ व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस डिफरेंस. से फॉर एग्जांपल आपके पास ये फ्लैश पॉइंट 310 डिग्री है और इसका फायर पॉइंट मान लीजिए 311 डिग्री है. ओके. अब उसी कंडीशन को आप दोबारा सोचें कि 310 डिग्री पे आपका फ्लैश पॉइंट आया और जब तक आप मशीन शट डाउन करेंगे तब तक टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने में तो टाइम लगेगा नहीं. मान लीजिए 311 हो गया, तो जो मोमेंट्री फ्लैश आना था अब वो 5 सेकंड तक जलेगा. और 5 सेकंड की आग अगर जलेगी तो तुरंत से आपकी सारी इंडस्ट्री में आग पकड़ सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए. ओके. सो नाउ इट्स वेरी वेरी क्लियर व्हाई देयर शुड बी द डिफरेंस ऑफ 10 डिग्रीज बिटवीन द फ्लैश एंड द फायर पॉइंट, and I have explained that particular point. Okay. So if they are very close, flash point and the fire point, then say first you observe a flash point at certain say 310 degree centigrade, and if you observe this and you try to stop your instrument, so the time duration which you will take to stop your devices or your machinery, so at this time duration the temperature will rise and it may quickly catch up to 311 degree centigrade, and then you may have the fire point. That means the moment that means the flash would not be there, but a flame is there which persists for the 5 seconds, and this may cause the fire hazard. So that's why it is very important to note that. Okay. ये तो इसका टेक्निकल आस्पेक्ट है. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो. से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एक सैम्पल है और ये लैब में मैंने ये आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया हुआ है, और मैं से किसी स्टूडेंट X को कहता हूँ कि इसका फ्लैश पॉइंट निकाल के लाइए, और बच्चा इस एपरेटस को यूज़ करके इसका फ्लैश पॉइंट मेरे को बताता है कि सर इट इज़ समवेयर अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ठीक कर देंगे. नाउ से सेकेंड डे, दूसरे दिन जब लैब आपकी स्टार्ट होती है, तो यही सैम्पल मैं किसी एक दूसरे बच्चे Y को दे देता हूँ और उससे कहता हूँ कि भाई इसका फ्लैश पॉइंट डिटरमाइन करके लाइए कितना है. तो अगर वो बच्चा इसका फ्लैश पॉइंट डिटरमाइन करके लाता है और वो कहता है सर 210 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ठीक है, तो मान लीजिए इस बच्चे ने किया नहीं और X वाले से पूछ लिया कि भाई कितना आया था, वही मुझे बता दिया अगर, तो फिर यहाँ पे वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि 210 अगर कल आ गया है तो फिर आज 210 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, ये इससे ज़्यादा आएगा, चाहे वो 210.5 हो, 211 हो, 211.5 हो, 1 डिग्री 2 डिग्री का फ़र्क इसमें आ जाएगा आपका. अब आप कहेंगे ये फ़र्क क्यों आएगा. से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
जब भी आपने फ्लैश पॉइंट निकाला तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लैश पॉइंट आने का मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे जितना आपका ऑयल वेपराइज होना था वो हो गया है और उसने एक फ्लेम दे दी है। तो अब अगर आप इसको अब 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से हीट करेंगे तो फिर से हीट करने पे क्या होगा, आप 210 पे तो वो वेपर प्रोड्यूस करेगा नहीं क्योंकि जितनी वेपर्स निकलनी थी वो ऑलरेडी निकल चुकी है। ओके, सो अब इसने इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो फ्लैश पॉइंट इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, it depends upon the volatile content present in your oil. Okay, and when this volatile content removes at a certain escapes out at certain degree centigrade, so to get the flash point for the second time you have to heat your oil to little higher temperature, उससे ज़्यादा आपको इसको हीट करना पड़ेगा। So this is a very technical point which you should know. So this is about flash point and fire point, and it's a very important concept for your examination, and go through this particular lecture, right? So I'll give you the assignment based on this. So that's it for today, guys. Thank you very much.